Hi guys. So let's start with today's session. So it is going to be a short and quick session. Basically, I will be taking you through a particular topic of a question paper. मुझे basically इस question paper से ना आप लोगों को ये समझाना है कि कैसे हम लोग from the help of data of uniform distribution, we are converting that uniform distribution data into normal distribution. CP2 के आपके पोर्टल में ना बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें मैंने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं. पेपर 1 में आप लोगों को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, पेपर 2 में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, मतलब आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग related to both the papers in those videos. So it's very important that you're going through those videos because those videos will actually tell you कि हाँ exactly मैं आपको what all things you need to obey, what all things you need to focus upon, what all things are there which are relevant for audit trail, what are things are relevant for modeling. So make sure in these live discussion classes we will be focusing on some of the important areas. ठीक है, मैंने आपको एक चीज सिखा दी कि अच्छा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और उससे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब ला रहे हैं ये एक पर्टिकुलर सेक्शन है. ठीक है, तो यूनिफॉर्म से नॉर्मल लाना आपका मल्टीपल पास पेपर्स में ये चीज टेस्ट हुई है. तो इफ द सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम तो आपका मॉडलिंग को आपको कैसे करनी है और सेम मॉडलिंग को आपको ऑडिट ट्रेल में कैसे करना है ये हम आज की क्लास में सीखेंगे. ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन सेज. So this question is given to you. Question says, read the background document which describes the scenario that needs to be modeled and documented for this project. Construct a spreadsheet model that produces the following calculations and charts. You should ensure that your spreadsheet contains appropriate cell checks and that you have performed reasonable checks at each stage of your calculations. First is generate a set of 6,000 normal, mean 0, variance 1 random numbers using the random numbers provided from a uniform 0-1 distribution. तो उसने आपको क्या बोला है, generate a set of 6,000 normal random numbers using the random numbers provided from a uniform 0-1 distribution. Next कह रहा है verify that the random numbers simulated in part 1 come from the normal distribution by calculating appropriate summary stats, by checking overall distribution using a chart, by checking overall distribution by completing a chi-square test. तो हम बेसिकली ये फर्स्ट टू पार्ट्स की चीजें मॉडलिंग के अंदर करना और ये दो पार्ट्स हमें ऑडिट ड्रिल में कैसे करने हम ये सीखेंगे बिकॉज ये एक कॉमन सेक्शन है जो मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में टेस्ट हुआ है कि यूनिफॉर्म को नॉर्मल में कन्वर्ट करना, chi स्क्वायर टेस्टिंग कैसे करना है, ये सब कुछ एक पर्टिकुलर मतलब आपको डेटा बस चेंज हो सकता है लेकिन ये एक टॉपिक है जो मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हुआ है. सो आई वांटेड यू गाइस टू बी कंफर्टेबल बिकॉज समटाइम्स सिमुलेशन का क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे हमें सिमुलेशन के क्वेश्चन आ गया, पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना. अब आपको इसके लिए हिंट भी क्वेश्चन में दिया होगा. मैं पूरा क्वेश्चन नहीं रीड करती बिकॉज बहुत सारी चीजें और हम लोग अभी बहुत सारी चीजें नहीं कर रहे. हम सिर्फ वो देखेंगे जो हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. Question says you work, background says basically you work for the actuarial department of banking, a public listed company. The HR department and chief financial officer of the company are considering offering share options. Terms in bold will be defined in the glossary at the end of the paper as part of a new incentive package to attract and retain key employees. HR manager has advised that throughout the 2025 calendar year, each senior manager will be awarded 3 independent tranches of options, while associates will be awarded 2 independent tranches. The tranches will have the same exercise date but different exercise prices. HR manager has provided the following schedule of the share options to be offered to employees. ठीक है, तो मुझे ये स्केड्यूल वगैरह इन सब चीजों से इतना कोई मतलब नहीं है. मुझे मतलब क्या है कि हमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे आना है तो हमें क्या ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, कौन सा फॉर्मूला गिवन है जो मैं फॉर्मूला यूज करके हम यूनिफॉर्म को नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हैं. फिर मॉडलिंग वाले पोर्शन में देखो वो क्या कह रहा है. CFO has provided the actuarial department with the following model to simulate the company's share price for each year between S0 company share price at 1st January 2025 to S3 company share price at potential exercise date of 1st January 2028 to S6. ST कैसे निकालने के लिए उसने फॉर्मूला दिया. ST is ST minus 1 into exponential mu minus half sigma square plus sigma ZT. Mu is 0.01, sigma is 0.05 and ZT is a random number from normal distribution. CFO has also provided a set of 6,000 random numbers from uniform distribution
to enable the actuarial department to generate 6,000 random numbers from a normal distribution to model ZT. Uniform random numbers have been checked and confirmed to be from the correct distribution. CFO has also confirmed that 1,000 simulations for each year which should be carried out. अब उसने ये तो बोल दिया कि हमें 6,000 नंबर्स दिए हुए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की, हमें इसे नॉर्मल में कन्वर्ट करने। अब नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए देखो उसने आगे हमें एडिशनल गाइडेंस दिए। Inverse transform method can be used to simulate values from continuous distributions. First, we generate a random number from uniform distribution, here given. We can use this to simulate a random variate x with probability density function fx by using CDF. Let u be the probability that x takes on a value less than or equal to x. So u is fx, x is f inverse u. Hence, the following two-step algorithm is used to generate a random variate from a continuous distribution. Generate random number, return x is f inverse u. वो कह रहा है आप पहले u लेके आओ, एक रैंडम नंबर लेके आओ, और फिर रैंडम नंबर जो आपके पास आएगा 0 से 1 के बीच में, उसका आपको x फाइंड आउट कर लो। कैसे फाइंड आउट कर लो? x इज बेसिकली इक्वल टू f इनवर्स u। अब वो कह रहा है अब ये इनवर्स फंक्शन हम एक्सेल में कैसे यूज करें, इसके लिए भी उसने आपको हिंट दिया है। नॉर्म इन function in Excel can be used to calculate the inverse of normal cumulative distribution for a given probability value generated from a uniform distribution. आगे आपके पास हिंट कि क्या करना है, कि जो आपके यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज गिवन है उस पे अब क्या लगा दो आप, नॉर्म इन फंक्शन यूज करके गेट योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू एंड कैलकुलेट योर समरी स्टैटिस्टिक्स। ये पूरे स्टेप बस ये करना है हमने, फिर हम इसकी कैलकुलेशन चेक करेंगे और इसका ऑडिटरल चेक करेंगे। दिस इज जस्ट वन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ कंप्लीट क्वेश्चन, बट कंप्लीट क्वेश्चन मल्टीपल वेज में टेस्ट हो सकता है। ऐसे ही आपको बहुत सारे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से किसी भी क्वेश्चन में वो आपको डेटा दे सकता है और उसको बोलेगा नॉर्मल में कन्वर्ट करो और उसकी ऑडिटरी। यहाँ तो उसने आपको ये हिंट दे दिया, एट टाइम्स आपको वो हिंट ना भी दे तो भी आपके नोट्स इस चीज के लिए रेडी होने चाहिए कि अगर मेरे पास रैंडम नंबर जनरेटेड है फ्रॉम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो आई कैन यूज दिस नॉर्म इन फंक्शन टू गेट माय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ जो हमारे पास डेटा गिवन है। अब देखो ये तो हमारे पास डेटा आ गया, एंड यू कैन सी द काउंट ऑफ डेटा इज 6,000। सबसे पहले तो आपको ऐसे चेक्स लगाने, और आप ये भी चेक लगा सकते हो कि आपकी जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई होनी चाहिए। ये डेटा चेक्स है, अगर क्वेश्चन में वो आपको ये बोल रहा है कि 0 और 1 के बीच में आपका ये लाई करना चाहिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के रैंडम नंबर्स है, तो उसने रैंड फंक्शन यूज करके ये रैंडम नंबर जनरेट करे हैं। तो बस हम ये चेक लगा सकते हैं कि हाँ काउंट ऑफ ऑल दीज नंबर्स शुड बी इक्वल टू 6,000, एवरेज इज अप्रोक्सीमेटली 0.5, और आप मिनिमम और मैक्सिमम नंबर का भी चेक लगा सकते हो कि वो 0 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, सो वी कैन सी नंबर ऑफ सिमुलेशंस, ये हमें डेटा गिवन है 1000 है, रैंडम नंबर काउंट 6000 है। आपको नॉर्मल का मीन कितना चाहिए 0, और नॉर्मल की स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी चाहिए 1। ठीक है, अब हम सिर्फ ये करते हैं कि हमने जो मेरे पास गिवन नंबर्स थे उसको मेरे को नॉर्म इन फंक्शन यूज करके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना। तो सी दिस फंक्शन norm in raw data A1 means ZT, standard deviation ZT. Basically what we are doing is, अगर मैं यहाँ पर norm dot in function क्या कह रहा है, returns the inverse of normal cumulative distribution for the specified mean and standard deviation, और हमारा specified mean और standard deviation क्या है 0 and 1। probability कौन सी हमें यूज करनी है यहाँ पर, जो मुझे यहाँ पर उसने डिफरेंट प्रोबेबिलिटी वैल्यूज दी। सो दिस कॉमा 0 कॉमा 1, एंड दिस इज व्हाट हाउ यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यूज फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक ये बहुत बड़ा स्टेप होता है बेसिकली यूनिफॉर्म को नॉर्मल में कन्वर्ट करना, जो अगर 90% स्टूडेंट्स जो सिमुलेशन का क्वेश्चन नहीं करके जाते हो वो इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं। अगर ये सिमिलर स्टाइल का क्वेश्चन अब एग्जाम में आता है
तो बिल्कुल भी आपको कोई भी हर्डल नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आपको गाइडेंस दे नॉर्मल यूज करने की या ना दे, बट यू शुड बी क्लियर विद दिस। और आप डेटा चेक्स लगा सकते हो। अब देखो ये आपका मेन स्टेप है कि एक्चुअली में अब हमने करना क्या है। वहां पे हमने वैल्यूज जनरेट कर ली, ठीक है, अब उन वैल्यूज को हमें यूज कैसे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आपने डेटा की मिनिमम वैल्यू निकाली, जो भी हमने अभी सारी कैलकुलेशन करी थी वहां से हमने मिनिमम वैल्यू निकाल ली, वहां से हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाली, हमने डेटा का मीन निकाला। आपको पता है 0 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए, मतलब बेसिकली इट शुड बी 0 एंड 1, लेकिन अभी एक्चुअल में कितना आ रहा है 0.0090। स्टैंडर्ड डिविएशन एक्चुअल में कितनी आ रही है 0.992। तो मिनिमम का फॉर्मूला लगाया है, मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाया है, मीन एवरेज का फॉर्मूला लगा लिया आपने, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का, और काउंट। और इसको हम क्या कह रहे हैं, हम हमेशा एक्सपेक्टेड से इसको कंपेयर करेंगे कि अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है तो बेसिकली माय एक्चुअल वैल्यूज शुड बी इक्वल टू माय एक्सपेक्टेड वैल्यूज। और अभी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, मिनिमम की एक्सपेक्टेड वैल्यू इज -3.7190, जो हम कह रहे हैं कि नॉर्मल फंक्शन यूज करके 0,1 यूज करके जो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम की आनी चाहिए, ठीक है। फिर ये मीन मिनिमम का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 0, स्टैंडर्ड डेविएशन 1, और बस आपने चेक कर लिया कि हाँ ठीक है, मतलब इसके आसपास ये है तो मतलब ठीक है, ये एक चेक हो गया। अब यहाँ पर आता है आपका जो हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट परफॉर्म करके अपना ये जैसे चार्ट बनाते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है आपकी मिनिमम वैल्यू क्या है, बेसिकली -3.45, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3.4। फोकस ऑन ईच ऑफ द स्टेप दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। आपने अपना यहाँ पर डेटा ले लिया जो आपने और उसको कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरवल से आप लोग इंक्रीज करते रहे, -5 to -4.5, -4.5 to -4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये हमने इसलिए किया है ब्रैकेट स्टार्ट फ्रॉम 5, -5 ब्रैकेट एंड टू -4.5, क्योंकि इसमें हम लोग एरिया अच्छे से निकाल पाएंगे कि -5 से नीचे का एरिया कितना है, फिर -4.5, और अगर मुझे -5 और -4.5 का एरिया चाहिए तो मैं दोनों के डिफरेंस से कैलकुलेट कर सकती हूँ। ये हमने ऐसे यहाँ पर सेग्रीगेट करके लिख लिया कि ब्रैकेट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ से हो रहा है। ये सारे स्टेप्स आपको करने हैं एग्जाम में। आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली, क्योंकि काई स्क्वायर टेस्ट क्या कहता है, अगर मुझे गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट चेक करना है तो मैं क्या करूंगी, एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड, हम वहीं पर चेक परफॉर्म करेंगे। फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चेक करके और कॉन्फिडेंस लेवल यूज करके हम ये चेक करेंगे कि ये गुड फिट है या नहीं। अब आपने क्या करना है, आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू बहुत ध्यान से देखो हम कैसे निकाल रहे हैं। हम कह रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इसको वैल्यू दे दो, जब -5, मतलब जब मेरी वैल्यू -5 है तो कितना एरिया आ रहा है, माइनस जब मेरी वैल्यू -4.5, मतलब सॉरी -4.5 और -5 का मैंने एरिया निकाल के दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया और फिर मल्टीप्लाई कर दिया विद रिस्पेक्ट टू काउंट, तो मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यूज आ गई जो इसके और इसके बीच में लाई कर। तो -4.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया -5 के कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया, जो भी एरिया आया मल्टीप्लाइड बाय 6000 विल गिव मी माय एक्सपेक्टेड वैल्यू। और एक्चुअल वैल्यू क्या होगी आपकी, कि आप काउंट फंक्शन लगाओगे कि एक्चुअल डेटा में कितने ऐसी वैल्यूज है बेसिकली जो -5 से नीचे है, कितनी ऐसी वैल्यूज है जो -4.5 से नीचे है, और फिर हमने दोनों को माइनस कर, and then next is actual minus expected का whole square divided by expected। अब इसको लेकर और एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड को लेकर आपने अपना ही यहाँ से चार्ट ड्रॉ कर लिया। सो ब्रैकेट की जो भी हमने इंटरवल से साइड करी है, मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यूज वर्सेस एक्चुअल वैल्यूज, आपने यहाँ पर अपना ये चार्ट ड्रॉ कर लिया।
और आपने का स्क्वायर फिट अपना निकाला जो होता है एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड, डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉन्फिडेंस लेवल यूज करके जो का स्क्वायर की वैल्यू आ रही है वो 10 है। अब क्योंकि दिस वैल्यू इज लेस देन दिस वैल्यू, हेंस वी कैन एक्सेप्ट दिस। जब आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू इज बेसिकली लेस देन योर टेबलेटेड वैल्यू तो यू कैन एक्सेप्ट इट, अदरवाइज यू कैन रिजेक्ट। तो ये एक पार्ट है कि आपने मॉडलिंग करी है। अब ये जो हमने पूरी मॉडलिंग करी है, बेसिकली वी नीड टू एक्सप्लेन दिस मॉडलिंग इन ऑडिट ट्रेल। यहाँ पर आपका एक्चुअल में चेक होगा कि आपने करा क्या। So this is basically April 2024 पेपर ओनली। मेरे को अभी पर्पस से मतलब नहीं है, बिकॉज आई नो वो आप लोग कर लोगे। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक सेक्शन समझा रही हूँ, तो अभी मेरे को सिर्फ इस सेक्शन के ऑडिट ट्रेल से मतलब है कि कैसे हमने इस सेक्शन को ऑडिट ट्रेल के अंदर प्रेजेंट किया। अभी तक किसी को कोई भी डाउट्स? आई होप दिस शुड बी क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू, बिकॉज 90% of students do mistakes in this type of question, so that's why this type of question is very important to do. So मुझे इससे मतलब नहीं है क्योंकि हमने किया ही नहीं है। ये है मेन सेक्शन, देखो आपने अपना रॉ डेटा आपको गिवन था, पैरामीटर्स में पैरामीटर मेंशन करिए, जेटी मैंने सेक्शन में आपने नॉर्मल फंक्शन यूज करके नॉर्मल की वैल्यूज निकाली और यहाँ पर अपने आपने चेक परफॉर्म किया है कि क्या, चाहे चेक आपको लिखा हो क्वेश्चन में या ना लिखा हो, ये चेक आपको परफॉर्म करना ही करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चेक विच नीड्स टू बी प्रेजेंटेड इन ऑडिट ट्रेल प्लस नीड टू बी परफॉर्म्ड इन एक्सेल। सो ZT वाला सेक्शन जो हमने परफॉर्म किया, देखो हमने उसको कैसे मेंशन किया ऑडिट ट्रेल में। 1000 simulations of 6 standard normal values, that is 6000 simulations are created in cells using Excel norm and function with probability set to use the relevant U01 random data from the raw data tab, mean 0, standard deviation 1. Data checks. The following checks were performed on the 6000 items of ZT standard normal data referencing the data in ZT sheet. Minimum, maximum, mean, standard deviation and count of the total set of data in cells this. Comparison of above sample data to expected values with the tolerance of 0. ये आपकी मर्जी है करना ना करना, मतलब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता कि टॉलरेंस चेक भी लगाओ, बस हम कह सकते हैं रफ लुक बाय आई सीज दैट इट्स एक्चुअल इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट देखो काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट इज कंस्ट्रक्टेड इन सेल्स C15 to H45 with results below. Actual count of standard normal data in ZT in brackets of size 0.5 from -5 to +5 is constructed in column G. Expected count of 6000 values from standard normal distribution in each bracket is calculated in column F by using norm dysfunction with lower bound of the bracket as probability input and mean 0. Standard deviation 1 to calculate cumulative normal distribution deducted from the same calculation using upper bound, जो हमने दोनों का एरिया निकाला। Column H calculates actual minus expected का whole square divided by expected for each bracket, and H38 sums these to calculate your chi-square test statistic. Chi-square test statistic is less than chi-square value with 95% probability calculated using degree of freedom of counter brackets, which is 90. So we accept that data is from a standard normal distribution with 95% probability. A count of actual and expected number of values in each bracket is created to show the goodness of fit of data to the standard normal distribution. It appears that uniform distribution random numbers were fit for the purpose are projections. We go on to use the ZT data created in the following calculations. तो ये पूरा आपका एक सेक्शन बेसिकली खत्म हुआ है कि आपको कैसे एक्चुअल वर्सेस एक्सपेक्टेड को कंपेयर करना। अब एक बार आप अच्छे से गो थ्रू कर लो।
सो गाइस, इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? मैं दोबारा से अब आपको एक्सेल की कैलकुलेशन दिखाती हूँ कि व्हाट एक्चुअली वी हैव डन. हमें रॉ डेटा गिवन है. रॉ डेटा से हम लोग ने डेटा चेक पर सॉरी जेटी पहले निकाला. जेटी निकालने के लिए हमने नॉर्म इन फंक्शन यूज किया, 0,1 यूज किया. फिर डेटा चेक्स के लिए मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम निकाल वैल्यू, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, काउंट, ये हमने चेक करा. फिर हमने -5 से लेकर पूरा 5 तक का ब्रैकेट बनाया. एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए आप लोअर बाउंड अपर बाउंड की वैल्यूज लेकर एरिया निकाल के आपस में माइनस कर रहे हो. एक्चुअल निकालने के लिए आपने काउंटिव फंक्शन यूज किया है. फिर एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड. जो आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक अगर आपकी वैल्यू पे जो टेबल से वैल्यू निकली है उससे कम आ रहा है तो ठीक है, अब तो ठीक है, नहीं तो रिजेक्ट कर सकते हो. और अभी यहाँ पर आपको टेबल से वैल्यू लेने की भी जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल काई स्क्वायर की वैल्यू उठा भी सकते हो. मतलब कि आपकी टेबल वाली वैल्यू ही देगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड कॉन्फिडेंस लेवल. जो हमें टेबल में वैल्यू दी होती थी हम डायरेक्टली एक्सेल में वो काई स्क्वायर भी यूज करके वो वैल्यू निकाल सकते हैं. And finally ending it with a tabular graphical presentation. So any doubts? Because बहुत सारे students इस चीज से related confused होते हैं कि हमें जब ऐसा कोई question आएगा जिसमें हमें simulation perform करना है तो वो उसमें हमें क्या करना होता है. So this is one example of that particular question where you are being provided with already simulated values from a uniform distribution. अब हो सकता है आपको ये values ना given हो और वो सीधा आपको ये बोले कि calculate normal distribution value. तो आपको रैंड फंक्शन यूज करके 0,1 रैंड फंक्शन यूज करके पहले यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से वैल्यूज ले लो, फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर दो. तो एनी डाउट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस? आप क्वेश्चन में फिर से मैं आपको ये दिखाती हूँ, मैं बार बार क्वेश्चन पेपर क्यों रेफर करवा रही हूँ, बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन में ऐसा क्या गिवन था जो हमने ये सब कुछ कैलकुलेट किया. रीड द फर्स्ट 2 स्टेप्स अगेन. सो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा था? कंस्ट्रक्ट अ स्प्रेडशीट मॉडल दैट प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग कैलकुलेशंस एंड चार्ट्स. जनरेट अ सेट ऑफ 6000 नॉर्मल रैंडम नंबर्स यूजिंग रैंडम नंबर्स प्रोवाइडेड फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, वेरीफाई दैट द रैंडम नंबर्स सिमुलेटेड इन पार्ट 1 कम फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बाय कैलकुलेटिंग एप्रोप्रिएट समरी स्टैटिस्टिक्स. अब क्योंकि उसने समरी स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करने के लिए बोला है, इसका मतलब यही है कि हमें मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन हम लोग एक्चुअल वर्सेस एक्सपेक्टेड कैलकुलेट कर लेंगे बाय चेकिंग यूजिंग चार्ट. चार्ट बना दिया एक्सपेक्टेड एक्चुअल का और आपने डेविएशन चेक करनी है कितनी ज्यादा आ रही है बाय चेकिंग ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंप्लीटिंग काई स्क्वायर टेस्ट. सो ये पूरा सेक्शन बेसिकली 11 मार्क्स का है मॉडलिंग के हिसाब से. ठीक है. सो ये एक पर्टिकुलर चीज है जो मुझे आपको आज की सेशन में सिखानी थी कि अब मैं अगर आपको कोई भी ऐसे क्वेश्चन दूंगी जिसमें मैं आपको एक्चुअल एक्सपेक्टेड के कंपैरिजंस करने के लिए बोलूंगी तो यू शुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस थिंग कि हाउ टू परफॉर्म कैलकुलेशंस फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट. नाउ अब आपको कुछ और जनरल डाउट्स है रिलेटेड टू सब्जेक्ट, एनीथिंग दैट यू वांटेड टू डिस्कस विद मी? आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव कंप्लीटेड योर पेपर 1 वीडियोस. कितनी वीडियोस रहती है? सारी वीडियोस हो गई? क्या सीन है आपका वीडियोस का? Quickly tell me, what is the status of your paper 1 videos? I expect every one of you to wrap up your paper 1 related videos ASAP. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ना क्या कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज के लिए हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि यार इन्होंने मॉडलिंग में ये किया है, वी आर नॉट एबल टू डू एग्जैक्टली द सेम स्टेप्स दैट दे हैव डन इन मॉडलिंग, सो हाउ टू डू. सी, आपका फोकस मॉडलिंग नहीं है,
आपका फोकस ऑडिट ट्रेल है, बट ऑब्वियसली द क्वेश्चन अगेन कम्स कि अगर मेरे को मॉडलिंग में ढंग से नहीं करूंगी तो मैं क्या ऑडिट ट्रेल के अंदर लिखूंगी। तो मॉडलिंग तो हमें डेफिनेटली अच्छी करनी ही है, लेकिन हमें बहुत ज्यादा ओवर फोकस एग्जाम में मॉडलिंग पे नहीं करना। अब आपको बताया है कि चाहे जो मर्जी आपको यूनिफॉर्म नॉर्मल को स्क्वायर का क्वेश्चन आ जाए, आपके पास एक डमी पास पेपर का एक सेट ऑलरेडी रेडी है। तो ऐसे आपके पास डिफरेंट टॉपिक्स अपने आप रेडी करके रख सकते हो कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो ये स्टैंडर्ड रूल्स है जो मुझे ध्यान में रखने। ऑब्वियसली ये सारी चीजें सिर्फ स्टैंडर्ड वाले टॉपिक्स के लिए तो है, जब नॉन कॉमन टॉपिक आएगा तो हम वहां पर ये सारी चीजें नहीं यूज हो पाएंगी। उस टाइम पर आपकी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग से आपको जो समझ में आ रहा है आप मॉडलिंग करो और उसकी अच्छी प्रेजेंटेशन बस आपको ऑडिट ट्रेल के अंदर करनी है। तो इसके लिए हम लोग एक टेस्ट अब रख रहे हैं नेक्स्ट वीक, जिसमें बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। और मेरा बस ये पॉइंट है कि आप उस क्वेश्चन से मॉडलिंग में भी थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ और ऑडिट ट्रेल में भी थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ, एंड देन आई विल कीप ऑन टेलिंग यू विच ऑल वीडियोस यू नीड टू फोकस अपॉन मोर। अभी सिर्फ आपको पेपर 1 की वीडियोस कंप्लीट करनी है, ठीक है। फिर हम वो वाला पेपर जो आपका टेस्ट होगा उसके बाद मैं एक बार फीडबैक डिस्कशन के लिए फिर से लाइव आऊंगी कि व्हाट मिस्टेक्स यू गाइस आर डूइंग इन दैट पर्टिकुलर पेपर। फिर मैं आपको नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस प्लस सम ऑफ द पास्ट पेपर्स दैट यू नीड टू गो थ्रू मैं आपको टारगेट्स देती रहूंगी। तो हम नेक्स्ट 2 मंथ्स में यही ऐसे अप्रोच करेंगे कि दीज आर द वीडियोस प्लस दीज आर सम ऑफ द पास्ट पेपर्स दैट यू नीड टू फोकस अपॉन। सो ऑल दोज हु आर गिविंग इट फ्रॉम आईएफओए, मेरा टारगेट पहले यही है कि हम लोग सितंबर के पास्ट पेपर्स डिस्कस करें। दिस इज वन ऑफ आईएफओए पेपर ओनली, अप्रैल 2024 का पेपर आया, ठीक है। Then once September exams are over, we will be focusing on some of II questions only. As of now, keep focus on IFA past papers. Although दोनों का अब तरीका सेम ही हो चुका है, पहले डिफरेंट होता था, बट स्टिल नाउ वी आर डूइंग डिस्कसिंग IFA पास पेपर्स। इंडिया वालों के लिए टेस्ट हमने अलग रखे हुए हैं और IFA वालों के लिए टेस्ट अलग रखे हुए हैं। तो आपको अपनी डेट्स के हिसाब से जैसे जैसे आपके पास शेड्यूल होएगा, जरूर अपना मेक श्योर दैट यू आर अटेम्प्टिंग योर टेस्ट एज पर द डेट्स, फर्स्ट थिंग। Second thing, do make sure that you are watching videos as per the targets. Third thing, do make sure that you are doing past papers also as per the targets. I will keep on telling you, पहले मुझे आपको बहुत ज्यादा बर्डन नहीं करना। अगर मैं एकदम से आपको डिफिकल्ट पास्ट पेपर दे दूंगी तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा क्या करना। पहली अप्रोच कभी भी पास्ट पेपर पे जाना नहीं है CP2 की। पहली अप्रोच आपको वीडियोस खत्म करनी है, फिर एक टेस्ट देना है, फिर मैं जो आपको पास्ट पेपर्स बताऊंगी वो करने। अभी मैंने आपको करवाने को मैं पूरा पास्ट पेपर करवा देती, बट मुझे अभी पूरा पास्ट पेपर नहीं करवाना। मुझे सिर्फ आपको भी टॉपिक वाइज प्रिपेयर करना है कि अच्छा इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा तो मुझे एक्सेल में ये करना है, ऑडिटर में ये करना है। फिर धीरे धीरे ऑन द स्पॉट में आपको सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आया तो हमें क्या क्या कैलकुलेशन करनी चाहिए थी। आप उनके डिफिकल्ट फॉर्मूले को मैच करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो। देयर कैन बी मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग क्वेश्चन, सो डोंट रिलाई ऑन देम एट ऑल। So anything which you guys want to discuss? If not, then that was it that I wanted to communicate in today's session. So with this, we wrap up for the day. Thank you, and do make sure, again I'm telling you, do make sure to follow your targets very thoroughly. Thank you.